بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آج ہماری کمپیوٹر کی کلاس ہے. کچھ اسٹوڈنٹ کے پاس بیسک کمپیوٹنگ بھی ہے جس کا کوڈ نمبر ہے 608. دونوں پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں. آپ کا اس میں تھیوری کا ایگزام بھی الگ ہوگا اور پریکٹیکل کا ایگزام بھی الگ ہوگا. پریکٹیکل کی ڈیٹ آ چکی ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل کیسے اور کس طرح سے آپ کو دینا ہوگا, کہاں دینا ہوگا, کب دینا ہوگا. آپ کا پہلا جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے سبجیکٹ ڈاٹا انٹری آپریشنز 229 کوڈ تھا اس کا. ٹھیک, اس کا جو آپ کا پریکٹیکل کا ایگزام ہے سیکنڈ بلاک والوں کے لیے, اس کی ڈیٹ آئی ہے 20 سے 23 ستمبر کے بیچ میں. ان تینوں دن میں کسی بھی دن یہ آپ کا پریکٹیکل کا ایگزام ہو سکتا ہے. یہ صرف سیکنڈ بلاک والوں کے لیے ہے جن کے ٹی ایم اے وغیرہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور ان کے ایگزام اکتوبر میں ہونے ہیں. صرف ان کے لیے ہے. جن کے ایڈمیشن لیٹ ہوا ہے, فرسٹ بلاک میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, مطلب ان کا ایگزام اپریل 2023 میں ہوگا, ان کے یہ پریکٹیکل وغیرہ مارچ میں ہوں گے, فروری یا مارچ میں. ابھی یہ صرف سیکنڈ بلاک والوں کے لیے ہے, وہ ذرا زیادہ دھیان دیں اس پر. یہ آپ کی ڈیٹ آئی ہے 20 سے 23 ستمبر. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ہال ٹکٹ ملے گا, اس میں آپ کے ایگزام سینٹر کا نام دیا گیا ہوگا جہاں سے آپ نے ایڈمیشن لیا ہے. اسٹڈی سینٹر وہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کا ایگزام سینٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا کرنا ہوگا, جو آپ کے مدرسہ کوآرڈینیٹر ہیں یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ اس ایگزام سینٹر پہ جائیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ ہمارے اس سبجیکٹ کا پریکٹیکل ان ڈیٹ میں ہونا طے پایا ہے, لیکن ان تینوں ڈیٹ میں سے کس دن ہوگا, ایک ہی دن ہوگا, وہ آپ کو ایگزام سینٹر والے بتائیں گے کہ آپ کا اس سبجیکٹ کا پریکٹیکل اتنی تاریخ میں اتنے بجے ہوگا. ٹھیک, 20 تاریخ دی گئی ہے. جو مدرسہ کوآرڈینیٹر یا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں وہ کیا کریں گے, 19 تاریخ کو ایک بار ایگزام سینٹر ہو کر آئیں گے اور ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ ہمارا پریکٹیکل ان تینوں میں سے کس ڈیٹ کو ہوگا اور کس ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے آپ کو. کیا اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہوگا. جو آپ کی جو تھیوری کا پیپر ہے, ابھی بات ہو رہی ہے ڈاٹا انٹری آپریشنز کی, جن کے پاس یہ والا سبجیکٹ ہے کوڈ نمبر 229. اس میں جو تھیوری کا ایگزام ہوگا وہ 40 نمبر کا ہوگا, 2 گھنٹے کا ایگزام ہوگا, اور جو آپ کا پریکٹیکل ہوگا وہ 60 نمبر کا پریکٹیکل ہوگا. ٹھیک, دونوں میں الگ الگ پاس ہونا ضروری ہے, تھیوری میں بھی اور پریکٹیکل میں بھی. تیسرا ہے ٹی ایم اے. اس کے جو مارکس ہیں وہ 20% آف تھیوری, جو آپ کے یہ 40 نمبر ہیں اسی میں سے 20% اس کے منتخب کر لیے جاتے ہیں اور وہ ٹی ایم اے کے طور پر آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں. امید ہے جن کے بلاک سیکنڈ میں ایڈمیشن تھے ان سبھی کے ٹی ایم اے اپلوڈ ہو چکے ہوں گے, آپ نے بنائے بھی ہوں گے ٹی ایم اے. ٹھیک, دوسرا جو سبجیکٹ تھا بیسک کمپیوٹنگ, کوڈ نمبر 608. کوڈ نمبر 608 بیسک کمپیوٹنگ زیادہ تر اسٹوڈنٹ پر یہ سبجیکٹ ہے. اس کا بھی ڈیٹ آ چکی ہے, اس کی پریکٹیکل ڈیٹ 28 ستمبر سے 1 اکتوبر. جن کے ایڈمیشن سیکنڈ بلاک میں ان کا جو پریکٹیکل ہونا ہے 28 ستمبر سے 1 اکتوبر کے بیچ میں یہ پریکٹیکل کا بیسک کمپیوٹنگ کا پریکٹیکل ہوگا. اور اسی طرح سے ہوگا, آپ کو جو آپ کا ایگزام سینٹر ہے پہلے ان سے پوچھنا ہوگا کہ ان تینوں تاریخوں میں سے کس دن آپ پریکٹیکل لے رہے ہیں. اس دن آپ کو اپنے ایگزام سینٹر پر جانا ہے, ایک فائل بنا کر آپ کو لے جانی ہے, پریکٹیکل فائل. وہ بھی ابھی آپ کو بتایا جائے گا کس طرح سے آپ کو پریکٹیکل فائل اپنی تیار کرنی ہے, اس کے بھی نمبر آپ کو دیے جائیں گے پریکٹیکل فائل کے. بیسک کمپیوٹنگ جو ہے اس میں اس کا دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ کو تھیوری جو ہے اس کی بھی 40 نمبر کی ہے. جو تھیوری والا جو ایگزام ہوگا, تھیوری مطلب جو کتاب آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس سے جو متعلق ایگزام ہوگا لکھنے والا, جو اکتوبر میں ہوگا, ٹھیک ہے, وہ 40 نمبر کا ہوگا. اور جو ابھی جو یہ 28 ستمبر سے 1 اکتوبر کے بیچ میں جو پریکٹیکل ہوگا وہ 60 نمبر کا ہوگا. 60 اور 40 ٹوٹل 100 نمبر کا آپ کا اس کا پیپر ہوگا بیسک کمپیوٹنگ. اسی طرح سے ڈاٹا انٹری بھی ہوگا, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو ہے ٹی ایم اے آپ نے اپلوڈ نہیں کیا ہوگا. بیسک کمپیوٹنگ کا ٹی ایم اے آپ کو نہیں ملا ہوگا. ڈاٹا انٹری میں ٹی ایم اے بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, بیسک کمپیوٹنگ میں ٹی ایم اے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں ایک پاسنگ کرائٹیریا دیا گیا ہے بیسک کمپیوٹنگ سبجیکٹ میں. اس میں بولا گیا کہ آپ کو تھیوری میں بھی 50% نمبر لانے ہوں گے, پریکٹیکل میں بھی 50% نمبر آپ کو لانے ہوں گے کم سے کم پاس ہونے کے لیے. تو تھیوری کتنی ہے 40 نمبر کی, اس میں کم سے کم پاس ہونے کے لیے 20 ضروری ہیں. اسی طرح سے پریکٹیکل میں پاس ہونے کے لیے 30 نمبر آپ کو لازمی ہے بیسک کمپیوٹنگ کے لیے. یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ کچھ پوچھنا ہو, جو بلاک سیکنڈ والے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں جن کا یہ پریکٹیکل ہے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو ریز ہینڈ کریے, کوئی سوال پوچھنا ہو اس سے متعلق. پریکٹیکل کے جو ہال ٹکٹ ہیں
वो आपको डाउनलोड करके दे दिए जाएंगे। TMA जो होता है 20 नंबर का होता है। 20 नंबर, अगर आपका थ्योरी पेपर 100 नंबर का है तो 20 नंबर का आपका TMA होता है। एक सवालनामा आपको दिया जाता है, उसमें 5 या 6 सवाल होते हैं, ठीक है। उनके जवाब आपको लिखने होते हैं। आपको एक सवालनामा दिया जाएगा, उसमें TMA में उसमें 6 सवाल होंगे, उनके जवाब आपको लिखने हैं उर्दू में, उनकी एक फ़ाइल बनानी है और उसको जमा करना है। ये TMA होता है। उसके लिए कहीं आपको नहीं जाना है, एग्ज़ाम सेंटर वगैरह पर नहीं जाना है, आपको खुद ही किताब में से देख के लिखना है। एक तरह से इंटरनल असेसमेंट जिसे कहते हैं वो चीज़ होती है, उसके जवाब आपको लिख के देने होते हैं और 20% उसके नंबर मुतय्यन किए गए हैं, थ्योरी के 20%। अगर आपका थ्योरी वाला एग्ज़ाम 100 नंबर का है तो आपका TMA 20 नंबर का होगा। इसी तरह से जैसे आपका प्रैक्टिकल जो कंप्यूटर का है उसमें 60 का तो प्रैक्टिकल का है, लेकिन 40 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम है, तो 40 के 20% आप निकालेंगे तो 8 नंबर बनते हैं। ये 8 नंबर का प्रैक्टिकल में TMA था, डाटा एंट्री ऑपरेशंस में। वालेकुम सलाम सर, ये जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है हमारा सब्जेक्ट जी, तो इसमें TMA नहीं होगा अपने साथ? बेसिक कंप्यूटिंग में TMA नहीं है। अच्छा, तो जी। ये प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा वो दूसरी जगह देना है? जी, एग्ज़ाम जो होगा आपका भी हॉल टिकट आएगा, उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर लिखा हुआ आएगा, वहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। आपकी एक फ़ाइल बनेगी, उसमें आप प्रैक्टिकल लिख के ले जाएंगे और जब आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ जाएंगे उस फाइल लेकर साथ में, उसमें कम से कम 10 प्रैक्टिकल आपके लिखे होंगे। वहाँ आपसे कुछ भी करवा के भी देख सकते हैं, वो जो एग्ज़ामिनर होंगे आपको कंप्यूटर पे बैठा दिया जाएगा। कोई आप कुछ भी लेटर वगैरह लिखेंगे तो आपसे बोलेंगे इसे बोल्ड कीजिए, इसे इटैलिक, जैसे आप वर्ड में काम कर रहे हैं इसे इटैलिक कीजिए, इसका साइज़ बड़ा कीजिए। इस तरह से प्रैक्टिकल होगा और वहाँ आपका वाइवा भी होगा, आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, आपको उनका जवाब देना होगा। बहुत बेसिक से सवाल होंगे, जैसे कंप्यूटर किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस किस तरह के होते हैं, शॉर्टकट कीज़ आपसे पूछे जा सकते हैं, कंट्रोल B से क्या होता है, कंट्रोल I से क्या होता है, कंट्रोल U से क्या होता है, या फिर पूरा जो हमारा मतन है उसे एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। इस तरह के सवाल आपको वाइवा में मिल सकते हैं। जी, 2-3 मिनट बची है। मैं आपको जो जिनका प्रैक्टिकल होना है ब्लॉक सेकंड में, उनको फाइल किस तरह से बनानी है एग्ज़ाम देने के लिए, वो चीज़ आप देख लीजिए। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपका NIOS का जो आई कार्ड आया है, आपका आधार कार्ड, आपका हॉल टिकट, ये तीनों चीज़ें, और आपका एक पेन या ज्योमेट्री बॉक्स आप ले जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको ले जानी होगी एग्ज़ाम सेंटर में, और एक फ़ाइल जो आप तैयार करेंगे वो भी आपको ले जानी होगी। कम से कम 10 नंबर की वो फाइल होती है, उसके बेस पर आपको 10 नंबर दिए जाते हैं 60 में से, ठीक है। यहाँ वही दिया गया है, थ्योरी एग्जाम आपका 40 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम 60 नंबर का, टोटल 2 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरह की एक फाइल होगी। आप स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे एक प्रैक्टिकल फाइल दे दीजिए। फाइल आती है प्रैक्टिकल की, उसमें एक तरफ लिखने के लिए लाइन्स होती हैं, दूसरी तरफ एक खाली सफ़ा होता है। उस तरह की फ़ाइल आपको लेनी होगी और उसमें आपको कम से कम 10 प्रैक्टिकल आपको लिख कर ले जाने हैं जब आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो वो फाइल बनानी अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। कोई भी परेशानी आती है आप मालूम कर सकते हैं। उसका जो फ्रंट पेज, आप पहला पेज जो तैयार करेंगे वो इस तरह से कुछ अच्छा दिखना चाहिए कि एग्ज़ाम जो ले रहा है वो देखकर ही आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे। इस तरह से बनाइएगा। इसमें NIOS आप ऊपर लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल, अपना नाम, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है जो आपको आई कार्ड पर देखने को मिलेगा, आपका सब्जेक्ट कोड डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, क्लास आपकी सेकेंडरी होगी, AI नंबर जो आपका स्टडी सेंटर नंबर है ये भी आपको आई कार्ड पर मिल जाएगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, अगर आपकी फ़ाइल मिसिंग हो जाती है, कुछ दिक्कत आती है तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके, और आपका एड्रेस, ये चीज़ें आपके फ्रंट पेज पर आ जाएंगी पहले सफ़े पर। इस तरह की वो फाइल होगी। यहाँ आपको लाइंस मिलेंगी लिखने के लिए, ये इंग्लिश में है, आप पूरा उर्दू में बना सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं। और इस तरफ एक खाली सफ़ा होगा, यहाँ तस्वीर वगैरह चिपकाने के लिए, अगर आप और ज़्यादा बेहतर अपना प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं तो आप तस्वीर वगैरह भी लगा सकते हैं इस फाइल में। इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हैं जो चीज़ आपको समझानी हो। जैसे यहाँ इन्होंने पूरा डायग्राम बताया है कंप्यूटर का, किस तरह से सारे फंक्शन काम करते हैं, उसकी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और जो CPU होता है। ज़रूरी नहीं आप इस तरह डायग्राम बनाएं, आप डायरेक्ट प्रिंट करवाकर कोई पिक्चर भी चिपका सकते हैं कंप्यूटर वगैरह के डायग्राम। ये देखिए इन्होंने यहाँ पिक्चर कुछ चिपकाई हुई है जो किताब में से थी, इन्होंने प्रिंट करवा के पूरी पिक्चर यहाँ चिपका दी है विंडो की। लास्ट में इस तरह से आप अपना पूरा बायोडाटा लिख देंगे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने बाकायदा अपनी पिक्चर भी लगा दी है, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह। इन्होंने टोटल 7 प्रैक्टिकल, 8
8 प्रैक्टिकल इन्होंने लिखे हैं, आप कम से कम 10 प्रैक्टिकल लिख के ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, कम से कम 10 तो होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। अच्छी क्वालिटी की आपको फाइल लेनी होगी, ज्योमेट्री बॉक्स आप ले सकते हैं, और प्रैक्टिकल बुक जो गाइड है आपको इंग्लिश में आपको अवेलेबल हो जाएगी, उर्दू में भी इंशाल्लाह आपको भेज दी जाएगी जो प्रैक्टिकल लैब मैनुअल है। इस तरह से फ्रंट पेज जो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी फाइल का पहला सफ़ा। प्रैक्टिकल वाले दिन आप ये चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं। NIOS का जो आपका ओरिजिनल आई कार्ड है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड है जो जिसे हम हॉल टिकट भी बोलते हैं, और इसके साथ आप एक अपना आधार कार्ड भी ले जाइएगा, और ज्योमेट्री बॉक्स में वही पेन पेंसिल वगैरह आप ले जा सकते हैं साथ में। इस तरीके का आपका हॉल टिकट आएगा, इसमें सारी डिटेल दी होंगी, और आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट इस तरीके से आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके सबके यहाँ नाम दिए होंगे, उनकी तारीख भी दी होगी किस दिन ये आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होना है, ये भी आप अपने साथ ले जाएं प्रैक्टिकल वाले दिन। प्रैक्टिकल में आपसे टाइपिंग कराई जा सकती है, आपको 4 पेज की शीट दी जा सकती है, उसमें आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आप वहाँ कर रहे हैं, या कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी आपको लिखने हो सकते हैं। आपसे वाइवा डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और उसी के बुनियाद पर आपको नंबर दिए जाएंगे कि आपको उसकी कंप्यूटर की कितनी आपको नॉलेज है, कितना आप जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। जी, प्रैक्टिकल आंसर शीट जो होगी आपकी, जो पेज आपको वहाँ दिया जाएगा अगर जवाब लिखने के लिए, उसमें आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, जो आपका स्टडी सेंटर नंबर है, डेट और अपने साइन करना, ये ज़रूर करें। इसके बिना आपका प्रैक्टिकल नहीं माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। प्रैक्टिकल आंसर शीट पर ओवर राइटिंग ना करें, मतलब काट पीट उस पर ना करें, बार बार काट कर दोबारा लिखना, इस तरीके से ना करें। प्रैक्टिकल अटेंडेंस लिस्ट पर जरूर सिग्नेचर करें। एक आपको अटेंडेंस लिस्ट दी जाएगी, उसमें आपको नाम और अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह भरने के बाद आपको साइन करने होते हैं उस पर अपने दस्तखत, उसको ज़रूर भरें, वरना आपको एब्सेंट माना जाएगा और आपके 0 नंबर आएंगे प्रैक्टिकल में कि आप एब्सेंट थे, आपने प्रैक्टिकल दिया ही नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जो आपकी अटेंडेंस लिस्ट है उस पर साइन ज़रूर करें आप जब आप प्रैक्टिकल दे रहे होंगे एग्ज़ाम सेंटर पर। और लास्ट ऑप्शन तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, टीचर से बहसबाजी झगड़ा वगैरह ना करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी बहुत ही दरख्वास्त के अंदाज में आपको पूछनी होगी टीचर से, क्योंकि वो पूरे 60 नंबर उस टीचर के हाथ में ही होते हैं जो वहाँ आपका एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पूरी होती है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर दोबारा से मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।